आप समझ जाते हो, बोलने में दिक्कत होती है। हमें सब समझ में आता है, हम बोल नहीं पाते। Hello students, today we are going to learn how to learn to speak English. Spoken English is, as you know, has become a craze in the present time. If you sit for an examination and after completing the examination, you attend interview. In the interview, you are asked questions in English. But at that time, you start hesitating. And thus, you go failure in speaking English. So at first, how to try to speak English. For it, there are something which all aspirants should do. Listening. Every aspirant should enhance his listening capacity. Listen every day. You should go to TV channel, listen discussions on some channels. You should listen speaking someone. You should listen your friends. In this way, listening capacity can take you to a proper place where the inculcation of English speaking may come in you or may be arisen in you. So listening is the first thing that everyone should do. The next thing is word power. How to strengthen word power? You should every day remember verb forms and other similar words, idioms, phrases, homophones, synonyms, antonyms, one-word substitutions. These are the way through which one can do it very well. So enhancement of word power is very necessary. Unless or until you have a strong word power, you can't be able or won't be able to speak English. You understand it. You tell many times that I understand English, but you can't speak it. This is the likeness in you, that you have not word power. And then you should develop the habit of reading habit. Read newspaper every day. Read some books every day. This reading habit can take you to a proper place where you'll be able to understand the things whatever has been written anywhere. So reading habit is one of the best sources of success in learning how to speak English. Then you should start speaking small sentences very slowly. Try to take part in some discussions in English with your friends, with your elders, with teachers even. And in this way, this slow process of learning one day may be changed into a very fluent speaking style. So, आप समझ जाते हो, बोलने में दिक्कत होती है। हमें सब समझ में आता है, हम बोल नहीं पाते। ऐसा कहने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। पढ़ लेते हैं, उसको भी समझ लेते हैं,
पर बोल नहीं पाते। एक तो कमी है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। जब कोई बोलता है टीवी में, कोई डिस्कशन होता है, कोई न्यूज सुनते हैं, तो ये लोग प्रॉपर जो प्रोनाउंसिएशन है, प्रॉपर टोन्स है, उसके साथ वो बोलते हैं। आपके पास वो नहीं है, आप नहीं समझ पाते। आप अभी तक जिस चीज को जैसे पढ़ रहे थे, मैंने कई प्रोनाउंसिएशंस डीडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैंने बताए हैं बहुत सारे शब्द के। अब आप प्लम्बर कहेंगे, याद है आपको, कहने वाला प्लम्बर कहेगा, शायद आपको समझ में ना आए। आप कॉम भी याद किए हैं, शायद डिस्कस करने वाला कॉम कह रहा हो, आपके समझ में नहीं आया। इस तरह प्रोनाउंसिएशन इज वेरी नेसेसरी। वो कैसे होगा? पढ़ते दौरान, लिसनिंग करते हुए, जब दूसरों को बोलते हुए सुनते हैं तो इमिटेट करिए उनको। देखिए जो वर्ड आप नहीं जानते हैं उनको कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन कैसे है किसी वर्ड के बारे में। क्या वो थ्री कह रहे हैं या थ्री बोल रहे हैं? क्या वो आंसर बोल रहे हैं या आंसर बोल रहे हैं? क्या वो पावर बोल रहे हैं या पावर बोल रहे हैं? आप सुनिए उनको, वैसे इमिटेट करिए, वैसे बोलने की कोशिश करिए अपने मित्रों के बीच में, अपने जूनियर्स के बीच में, सीनियर्स के बीच में। और इसके लिए प्रोनाउंसिएशन के लिए आप सुन करके सीखिए, देख करके सीखिए, ऑनलाइन बोल करके सीखिए, कोशिश करके, अभ्यास करके, और साथ साथ वर्ड पावर बढ़ाते जाइए। जिस भी वर्ड को सीखिए उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन उसी समय जान लीजिए कि क्या हो। बहुत सारे वर्ड्स हैं जो एक ही तरह प्रोनाउंस होते हैं, जिसको होमोफोन बोलते हैं। कितने होमोफोन्स हैं, एक ही तरह के होते हैं, लगभग मिलते जुलते प्रोनाउंसिएशन होते हैं, लेकिन मीनिंग अलग होता है। तो जब तक हम वर्ड्स को नहीं जानेंगे कि कितने तरह के होते हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन डिफर करता है, एक ही है लेकिन मीनिंग डिफर करता है, तो बोलते हुए किसी व्यक्ति को कैसे समझ पाएंगे आप लोग कहा क्या रहा? नहीं समझ पाएंगे। शोर, समुद्र किनारे को कहते हैं शोर, ऐसे जो आ रही। शोर, ऊपर उठने को कहते हैं SOAR। शोर SORE, भाव को भी शोर कहते हैं। उनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे आप कि कौन क्या बोल रहा है? इसके लिए यह जरूरी है कि आप वर्ड पावर को इंक्रीज करिए। आप हर तरह के वर्ड्स को कोशिश करिए याद करने की। हर आपको याद करना पड़ता है, अभ्यास करने की। अभ्यास करिए लोगों के साथ बैठ करके। ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड स्पीक इंग्लिश। When you will be able to understand English, you will be able to speak English. For speaking, understanding is very necessary. Practice is very necessary. Everyday practice. Make your routine. And at first, what should be our everyday plan for study? How can we manage to speak those sentences in English which we use every day, from our bedtime, rising bedtime to the going to bedtime, from morning to evening, from your home to office, from your general life to office life, everywhere. What are the sentences that come in your everyday life? Learn them, remember them, try them, speak them, practice them. Perhaps you will be able to do this. So, listening, speaking, enhancing word power, and then speaking. If you need writing, you should write down the message, letters in English, and while learning words, learn their pronunciation. So everyday practice. There is not any way in the world
Without learning, without practicing, that will teach you English. It doesn't happen overnight. That in the evening you think that I will learn English, and in the morning, miraculously you will start speaking English. No, this doesn't happen. So, this miracle will not take place in anybody's life. Everyone has to do. Everyone has to go through all the process. So let us understand it that वर्ड पावर मजबूत करें, लिसनिंग कैपेसिटी बढ़ाएं, स्पीकिंग कोशिश ट्राई करें, वर्ड मीनिंग याद करें, सुने दूसरों को बोलते हुए करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस के साथ शुरुआत करें अपनी, जहां भी थोड़ी फॉल्ट हो उस फॉल्ट को वही हम खत्म करें, फिर उसको कैरी करके आगे न ले चलें। प्रत्येक दिन एवरीडे प्रयोग में आने वाले वाक्यों सेंटेंसेस को कैसे बोलें, इसकी एक लिस्ट तैयार करें, एक सूची तैयार करें, उस पर काम करें, संपर्क करें ऐसे लोगों से जो जानते हैं, पूछें, समझें, ऑनलाइन जाकर के देखें। शायद सब करने से इंग्लिश निश्चित रूप से आ जाएगी। ऐसे दावा करने वाले यूट्यूब पर कि एक रात में अंग्रेजी, 15 दिन में अंग्रेजी, 1 महीने में अंग्रेजी हम सिखा देंगे, याद आएगा, ये सारी गलत बातें हैं, नीरा गलत, absolutely wrong. You should not come under this type of things and understanding. ये झांसा है। आप पढ़िए, समय लगेगा। हाँ, ये निश्चित है कि 3 महीने, शायद 2 महीने, 3 महीने में आप शुरू कर दें बोलना, थोड़ा थोड़ा सीख जाए कुछ ना, और उसको 5-6 महीने में थोड़ा और अच्छा बोलने लगे, साल भर में खूब बढ़िया बोलने लगे, और स्वयं की प्रैक्टिस आने वाले कुछ समय में आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो जाएगी। शुरुआत करेंगे तो कल ही थोड़ा आ जाएगा, आज शुरुआत करेंगे थोड़ी अंग्रेजी कल ही आ जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कल अंग्रेजी आपने सीख लिया और 15 दिन पढ़ लिया, और किसी ने दावा किया था किसी यूट्यूब चैनल पर, यूट्यूबर ने, कि मैं तो सिखा दूंगा 15 दिन में। फिर जाइए 15 दिन पढ़िए और देखिए, आप ध्यान नहीं देंगे, 15 सेंटेंस में नहीं आ पाएगा। हाँ, आप शुरू तो कर देंगे कल ही से, आज शुरू करें, कल ही से आपको आना शुरू हो जाएगा, लेकिन आप 2-3 महीने बाद ही उसको बोल पाएंगे, ठीक से समझ पाएंगे, और धीरे धीरे श्योरली यू विल बी एबल टू स्पीक। इसमें कोई डाउट नहीं कि आप नहीं बोल पाएंगे। लेकिन हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, हड़बड़ाहट में कुछ नहीं होगा। डोंट बी इन हैज़र्ड, दैट विल डिस्ट्रॉय यू, दैट विल रूइन योर स्किल, वो भी गड़बड़ हो जाएगा, जो है वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए आराम से बिना हड़बड़ाहट के वर्ड पावर याद करें, सेंटेंसेस बनाएं, एवरीडे यूज होने वाले सेंटेंसेस पर ध्यान दें, स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग, इन सब पर ध्यान दें बारी बारी से, और छोटी छोटी चीजों से शुरू करें, छोटी छोटी चीजों से। माय कमिंग सर, मे आई गो आउट, आई वांट टू सी यू, आई वांट टू टॉक विथ यू, आई एम गोइंग टू मार्केट, what are you doing? I am reading now. Where do you want to go? I want to go to fair. Why are you going there? I am going to see there something. धीरे धीरे छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए एवरी डे। Mom, I want to have a glass of milk. Yeah, come and take. Yes, mom, I am coming. इस तरह के छोटे छोटे बात, शायद यही छोटा छोटा बात आगे चल करके बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस में बदल जाएगा, और आप बिना किसी हिचकिचाहट के अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। इसलिए कोई हड़बड़ाहट मत दिखाइए। डोंट बी इन हैस्ट। अंग्रेजी में कहावत है, आपने सुना होगा, हैस्ट मेक्स वेस्ट। हड़बड़ाहट से हमेशा गड़बड़ी होती है, कोई फायदा नहीं होता। इसलिए देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह वहां राह। But remember one thing, Rome was not built in a day. रथी पर दही नहीं जमता, कार्य धीरे होता है, काहे होता धीर, समय पाए तब फले, कहते सींचो नीर। लेकिन वेल बिगन इज हाफ डन, सुना होगा, जब ना था तब, वेल बिगन इज हाफ डन। एक अच्छी शुरुआत करें, आपको लगेगा कि मुझे अंग्रेजी आ गई, और पॉजिटिवली आप रिचार्ज हो जाएंगे।
जब पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे आप, निश्चित रूप से आप सीख लेंगे। इसलिए मेंटल स्ट्रेंथ की भी आवश्यकता है, प्रैक्टिस की भी जरूरत है, और जरूरत पड़े तो संपर्क की भी जरूरत है। उस व्यक्ति से राय लेने की जरूरत है जो जानते हैं, जिन्हें अंग्रेजी आती है। इन सब की शुरुआत अगर हम करें, वी कैन बी एबल टू लर्न इंग्लिश। तो आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू डू इट, स्टार्ट इट विदाउट एनी डिले, एंड नेवर वेट that you will start tomorrow and day after tomorrow. As soon as it comes to your mind, you should start. जैसे ही दिमाग में आती है बात शुरू कर दीजिए, लग जाइए, अपने से याद करिए, वर्ड में संपर्क करिए, देखिए ऑनलाइन, सबके हाथ में मोबाइल है, सब कुछ है। तो आप सीखें, बोलें, पढ़ें, लिखें, डिस्कशंस करें। ये सारे रास्ते आपको वर्ड पावर, आपके वर्ड पावर को मजबूत करेंगे और आपको अंग्रेजी बोलने वाले एक शख्स के रूप में डेवलप करेंगे। आई होप आप ऐसा करेंगे और एक दिन बहुत जल्द ही आपको अंग्रेजी बोलने आ जाएगी। आप सीखें अंग्रेजी, निश्चित रूप से सीखें। यूट्यूब पर भी अच्छे लोग हैं सिखाने वाले, धीरे धीरे सीखें, वर्ड पावर मजबूत करें, सीखें। और आप ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, द चंपारण टॉक शो। बराबर इस पर इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल वीडियो आते रहते हैं, आप सुनते रहेंगे, इंस्पिरेशन मिलता रहेगा, मोटिवेशन मिलता रहेगा और आप सीखते रहेंगे। और जीडी इंग्लिश क्लासेस के भी चैनल हैं, जीडी क्लासेस बाय कृष्णा सिंह। उससे बहुत सारे वर्ड पावर की चीजें आपको मिलेंगी, अपना वर्ड पावर आप मजबूत कर सकते हैं। काफी होमोफोन्स है, काफी कई तरह के वर्ड्स हैं, उस पर आप जाएं, सीखें, पढ़ें। मे गॉड हेल्प यू। तो आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए, लाइक करिए, देखिए, दिखाइए। धन्यवाद, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।